Children, in last few classes we have discussed number of dimensional formula of different quantities, and today we are going to discuss dimensionless quantity. Dimensionless quantity, which is a physical quantity which can be measured but which does not have any dimensions. For example, refractive index mu. Refractive index is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in any medium, right? Now it's ratio of two same quantities. So dimension of refractive index can be written as dimension of speed of light in vacuum upon dimension of speed of light in any medium, and that is 1. So refractive index is a dimensionless quantity. Getting the point? Think about some other quantity which does not have dimensions. For example, take relative density. Relative density is defined as density of substance upon density of water. It's comparison of density of substance with density of water at 4 degrees Celsius. If you remember, we have studied it already. So it is again ratio of same quantity. So relative density RD is also a dimensionless quantity. Now think any other quantity which is also dimensionless in the same way. We have discussed in previous classes two quantities like this. One is angle. Angle is arc upon radius, and dimension of angle is dimension of arc upon dimension of radius, that is length upon length. So angle is also a dimensionless quantity, right? Similarly, if you remember in the last class, I think we have studied about a quantity called strain. It was increase in length of the wire upon original length of the wire. So it's ratio of similar quantities. So this implies that strain is also a dimensionless quantity. Now there are few things which are always dimensionless, like any number is always dimensionless. Pi, sine theta, tan theta, cos theta. Exponent, that is any quantity which is in the power of e, that is always dimensionless. So note it down because these points are going to help you a lot. And now we are going to note down some very interesting reasoning, important and tricky questions. There is a very popular question: is there any quantity which has unit but does not have any dimensions? Yes, there is a quantity, angle. Unit of angle has radian. Unit of angle is radian. But we know that it is a dimensionless quantity. Right?
but its reverse is not true. Any quantity which has dimension will never be unitless. So note down that any quantity which has dimensions must have unit. Then next question is that is there any important physical constant which does not have dimensions? So you have to remember that Avogadro number is a famous constant, but it's a number and it does not have dimensions. Now there is a quantity, you will come across this quantity in many numericals, rate of flow of liquid. So understand what does it mean. It means volume of liquid flowing per unit time. So dimension of rate of flow of liquid that will be dimension of volume upon dimension of time. That is L3 upon T or L3T1 minus 1. इसको ठीक कर लेना बेटा, T to the power minus 1. Then there is a quantity linear mass density. What does it mean? Mass per unit length. So linear mass density has dimension it is having dimension of mass upon dimension of length. So it will become ml minus 1. So these were the quantities which I was discussing from last 2-3 periods. Now we will start, we are ready to understand application of dimensional analysis. तो सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगी, तुम समझो, फील करो कि डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने की ज़रूरत क्या है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टूल है रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में. इस चीज़ को थोड़ा समझो. अगर मान लो एक कार डिज़ाइन करनी है और उसका जो डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक होना चाहिए, मतलब वो मिनिमम एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करे, उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो उसका डिज़ाइन, तो उसके शेप को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है जब वो रफ्तार से चल रही हो, हम उन सारी क्वांटिटीज़ को गेस करेंगे और उसके बाद वो शेप के ऊपर वो क्वांटिटीज़ कैसे असर डाल रही है उस पर एक्सपेरिमेंट करें और तब ये पता करें कि इन चीज़ों का शेप पर क्या असर पड़ा, किन चीज़ों ने शेप की एयर रेजिस्टेंस को बढ़ाया और किन चीज़ों ने उसके शेप की एयर रेजिस्टेंस को कम करने में मदद की जिससे गाड़ी की रफ्तार बढ़ी. एक तो ये तरीका है कि सब कुछ एक्सपेरिमेंट से हम डिसाइड करें, तो बहुत लंबा टाइम लगता है, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को. लेकिन दूसरा तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस. उससे हम काम को काफ़ी छोटा कर देते हैं. तो ये क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? इट्स अ पावरफुल टेक्निक और टूल which helps us to establish relation between variables. कोई एक वेरिएबल जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम उस वेरिएबल को वो जिन दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है उस वेरिएबल का उन फैक्टर्स से रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस.
विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन एक्सपेरिमेंट्स। और एक बार रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर उसको एक या दो एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लेते हैं कि ये जो इस्टेब्लिश किया है हमने ये सही है, होल्ड कर रहा है या नहीं। तो काम बहुत छोटा हो जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस के दो मेथड्स हैं, रेले मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम। इसमें से ये हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में रेले मेथड है। लेकिन रेले मेथड से पहले हम बार बार वेरिएबल टर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो ये समझे कि फिज़िक्स में हम दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डील करेंगे, एक जो वेरिएबल है और दूसरे जो कांस्टेंट है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है और वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिनको चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर डालकर उसको बदल सकते हैं। तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल उसके असर से चेंज होता है। तो x और y एक्सिस पर जब कभी ग्राफ बनाते हैं तो जो नॉर्मल रूल है वो क्या है कि हम x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं और y एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं। ये एक रूल है जो हम हमेशा प्रैक्टिकल में ग्राफ बनाते समय यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एक सिंपल से एग्जाम्पल पर, समझे कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे काम को छोटा कर देती है। मान लो कि हमको पता ही नहीं है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और हमें ये काम सौंपा गया कि भाई सिंपल पेंडुलम जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उनका रिलेशन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उनका रिलेशन टाइम पीरियड का उसके फैक्टर्स से रिलेशन इस्टेब्लिश करो, पता करो। तो हमारे पास दो रास्ते हैं जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एक रास्ता तो ये कि हम पहले गेस करें कि कौन कौन सी चीज़ें टाइम पीरियड पर असर डाल सकती हैं और उसके बाद उन चीज़ों का रेले मेथड के थ्रू, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू एक छोटा सा फॉर्मूला निकालें और उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लें। और दूसरा लॉन्ग लेंदी मेथड है, हर फैक्टर को बदलकर हम टाइम पीरियड पर उसका असर देखें और उसके बाद उस रिलेशन से हम एक फॉर्मूला डिफाइन करें। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम तो नहीं है, हमको पता है कि सिंपल पेंडुलम का बॉब स्फेरिकल शेप का होता है, पर इमेजिन करो कि मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम हो और हम उसको बैठकर सोच रहे हैं, उसको हम ऑसिलेट कराते हैं, ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। तो हमें लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि इसकी हैवीनेस यानी वेट टाइम पीरियड पर असर डाले। तो हमने कहा कि चलो टाइम पीरियड का एक फैक्टर हो सकता है कि वेट हो, और वेट में दो फैक्टर्स आ गए एक्चुअली, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके बाद हमने सोचा कि अगर हम इसको ऑसिलेट कराएं और ऑसिलेट कराते समय अगर सिर्फ छोटा सा ही एम्पलीट्यूड दे तब इसका ऑसिलेशन, और अगर इसको ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड देकर छोड़े तब इसका ऑसिलेशन। तो हमको लग सकता है कि हो सकता है कि जब ज़्यादा और बड़ा एम्पलीट्यूड दे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगे इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में। तो हम दूसरा फैक्टर लिख लेंगे कि हो सकता है कि टाइम पीरियड पर एम्पलीट्यूड का असर पड़ता हो। इसके बाद उसकी लेंथ हो सकता है असर डालती हो, ज़्यादा लंबा टाइम जो सिंपल पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशन पूरा करने में ज़्यादा टाइम लेता हो,
तो हम लेंथ को भी एक फैक्टर मान लेंगे, ठीक। और एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि हम जब सिंपल पेंडुलम को बनाते हैं तो हम उसके शेप को स्फेरिकल रखते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, और उसे बहुत हैवी भी रखते हैं जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे हो, और एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के सारे जतन हम करते हैं। तो हम इन 4 फैक्टर्स पर मान ले कि मान लो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि हम डिफरेंट मास सस्पेंड करके बॉब के डिफरेंट मासेस लेकर और टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, और बार बार डिफरेंट मासेस का टाइम पीरियड के साथ जो रिजल्ट आए उसको एनालाइज करें और ये कंक्लूजन निकाले कि भाई टाइम पीरियड मास पर कैसे डिपेंड करता है, करता भी है कि नहीं करता है। इसी तरह से अगर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड का असर जानना है तो हमको अर्थ में बहुत नीचे या माउंटेन के ऊपर बहुत ऊपर जहाँ जी चेंज होता है, या कोई और तरीका जिससे जी वैरी करे, और तब हम ये पता करें जी की डिफरेंट वैल्यूज़ पर कि भाई टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ता है। एम्पलीट्यूड वही तरीका कि भाई डिफरेंट एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड मेज़र करें और देखें कि भाई एम्पलीट्यूड का क्या असर पड़ता है, और इसी तरह से लेंथ का। तो तुम समझ सकते हो कि ये एक लंबा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है रेले मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस का पहला मेथड, जो सिर्फ हमारे सिलेबस में है, दूसरा मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो रेले मेथड क्या कहता है? अब हम डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं, और इसके लिए हमको 2-3 रूल्स जानने हैं। और क्या पता होना चाहिए? हमको डिफरेंट क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तो अब हम एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस का पहला और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं। सो आई नीड योर अटेंशन, फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। पहला रूल है, रूल के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, पहला रूल तो समझ लो। ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी अगर आप u रफ्तार से शुरू करें t इक्वल टू 0 पर अपने जर्नी को, और a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हुए आप अपने स्कूटर को t टाइम के बाद जानना चाहें कि आपका स्कूटर कितनी रफ्तार से भाग रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान करो, क्या अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 सेकेंड प्लस 1 kg इक्वल टू कितना, तो तुम कहोगे कि मैम 1 सेकेंड में 1 kg कैसे ऐड कर दे। आप 1 सेकेंड में 1 सेकेंड ऐड कर सकते हो और 2 सेकेंड का आंसर कर सकते हो। आप 1 kg में 1 kg ऐड कर सकते हो और 2 kg का आंसर कर सकते हो, लेकिन 1 सेकेंड में यही डायमेंशनल होमोजेनिटी और कंसिस्टेंसी रूल है। आप सेम डायमेंशन वाले चीज़ों को ही ऐड कर सकते हैं, और आप सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उससे जो रिज़ल्ट निकलता है उसका डायमेंशन भी वही होता है जो एडेड क्वांटिटीज़ का है। फिर ध्यान से सुनो, आप सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप 2 सेकंड में से 1 सेकंड माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप 2 kg में से 1 सेकंड माइनस नहीं कर सकते ना। तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उसका डायमेंशन वही होता है जो सब्ट्रैक्टेड या एडिड क्वांटिटीज़ का है। बस सिंपल सा रूल। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन अगर आप सिंबल्स में फंसे तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप u में
उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसका डायमेंशन वही हो जो u का है, यानी वेलोसिटी का। और फिर जब आप दो वेलोसिटीज को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेलोसिटी का डायमेंशन ही होगा, वो क्वांटिटी भी वेलोसिटी ही होगी। ये कहलाता है क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज रूल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। दूसरा रूल ये कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला remains same for all the systems of units। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट में कुछ और हो और CGS यूनिट में कुछ और हो। आप चाहे CGS यूनिट यूज़ करें और डाइन फोर्स का यूनिट यूज़ करें, आप चाहे SI यूनिट यूज़ करें और न्यूटन, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 ही रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला रिमेन्स सेम नो मैटर विच यूनिट सिस्टम आर वी यूजिंग। और तीसरा रूल हम अभी इस एग्जाम्पल के बाद समझने वाले हैं। ये एग्जाम्पल हमको दो चीज़ें सिखा रहा है। एक, डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन, यानी किसी क्वांटिटी का उसके फैक्टर्स के साथ रिलेशन पता करना, वो भी कैसे करना है। और दूसरा कि ये जो रूल हम कंक्लूड करेंगे अभी कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, रेले मेथड के थ्रू, अगर हम किसी क्वांटिटी का उसके फैक्टर्स के साथ रिलेशन पता करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारी ये लिमिटेशन है कि हम 3 से ज़्यादा फैक्टर्स का असर किसी क्वांटिटी के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो चलो हम देखते हैं कि भाई टाइम पीरियड को अगर हमने माना कि ये 4 फैक्टर असर डालते हैं, तो हम कहेंगे, ध्यान से देखना, कि टाइम पीरियड में बी इज प्रपोर्शनल टू मास टू द पावर ए। हमें नहीं पता कि मास के साथ उसको कैसे रिलेट होना है, तो हमने कहा कि मान लो ए की पावर मास की है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, then g to the power b, then amplitude to the power c and length to the power d। ये पहला काम कि जो फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में दिए हो, यहाँ तो हम एक बड़ा पॉइंट समझने जा रहे हैं कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस कैसे चीज़ों को छोटा कर देती, तो इसलिए मैंने अपने मन से सोच कर वो सारी टर्म्स लिख लिए जो मुझे लगता है कि टाइम पीरियड पर असर डाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा मान के चलो कि हमें पता ही नहीं है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ये उस समय की बात हो रही है। तो अगर हमने मान लिया कि इन पावर्स के साथ ये टर्म्स टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आते हैं, तो हम कहेंगे कि T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट मास टू द पावर A, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द पावर B, इसको A ले लेते हैं एम्पलीट्यूड को, क्योंकि यहाँ हमने A यूज़ किया है, एम्पलीट्यूड टू द पावर C एंड लेंथ टू द पावर D। अब ये जो K है, ऑब्वियसली इसका डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हो सकता है वो हमने यहाँ पे रख लिए हैं। जो K बैलेंस करने के लिए आ रहा है कांस्टेंट, उसको हम डायमेंशन लेस लेकर चल रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, T लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन T टू द पावर 1 है पक्का। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, सोचो। राइट हैंड साइड में K तो डायमेंशन लेस है, तो जब हम डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड कह रहे हैं तो हम K को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। मास का डायमेंशन होता है M, और ये A पावर के साथ फॉर्मूले में आता है। G एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 है,
इसीलिए मैंने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो तो ये हेल्पफुल होता है। फिर एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है, यानी LT-2 को इसकी पावर b, और एम्पलीट्यूड की पावर c यानी लेंथ की पावर c, और ये भी लेंथ है देखो, तो लेंथ की पावर d। ठीक, अब हमने कहा कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है कि अगर ये और ये एक इक्वेशन के दो साइड्स हैं तो दोनों के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम हो, क्योंकि सेम डायमेंशंस एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकते। आप 1 kg को 1 सेकेंड से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इक्वल क्या करता है, इस साइड को इस साइड से कंपेयर करके कहता है हाँ दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन मिलकर वही होना चाहिए जो टाइम का डायमेंशन है, यानी t, तभी ये इक्वल साइन वैलिड है। तो हमने कहा कि डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू t। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मास टू द पावर a, अब जहाँ जहाँ l है, l टू द पावर b इंटू l टू द पावर c इंटू l टू द पावर d। तो हम लिखेंगे यहाँ पर l टू द पावर b प्लस c प्लस d और t टू द पावर -2b। ये तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t टू द पावर -1। अब अगर इक्वल साइन वैलिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि मास तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इधर तो मास है ही नहीं। मास की पावर है 0, l की पावर है 0, तो l की जो भी पावर है, पहले मास की पावर लिख लेते हैं। मास की पावर तो होनी चाहिए 0, डायमेंशनली इस फॉर्मूले में मास नहीं आना चाहिए। लेंथ की पावर b प्लस c प्लस d, इसको भी मिलके 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेंथ भी नहीं है फॉर्मूले में। टाइम की पावर -2b, इधर -2b और इधर -1, इसका मतलब क्या हुआ कि -2b को -1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों साइड इक्वल हो पाएंगे। तो टाइम की पावर -2b शुड बी इक्वल टू -1। सो b टू द पावर b इज इक्वल टू, ये +1 है बेटा, मैं गलती से यहाँ पर देखो t टू द पावर -1 लिख गई थी, तो -2b को इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि t की पावर इधर और t की पावर इधर सेम होगी तभी दोनों साइड के डायमेंशंस सेम होंगे। तो -2b को इक्वल होना चाहिए 1 के, तो b को इक्वल होना चाहिए -1/2 के। तो देखो हमें दो वेरिएबल्स अननोन जो थे हमारी इक्वेशन में वो मिल गए। इसने ये बताया कि मास डज नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड डायमेंशनली। ठीक बात। और इसने ये बताया कि b इक्वल टू -12 है, यानी आपने b किसको लिया था, किसकी पावर ली थी, आपने b ली थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर। इसका मतलब कि t के फॉर्मूले में g की पावर -12 होनी चाहिए। ठीक बात है। तो ये दोनों तो मिल गए, लेकिन c और d का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। तो हमने कहा कि पहले हम b के वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। तो -12 प्लस c प्लस d इज इक्वल टू -12। सो c प्लस d शुड बी इक्वल टू -12 नहीं बेटा 0। सो c प्लस d शुड बी इक्वल टू +12। अब c और d दो वेरिएबल हैं, लेकिन इक्वेशन यहाँ पर बनी थी देखो कितनी, 1 2 और 3। तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि अगर किसी वेरिएबल के फैक्टर्स 3 से ज़्यादा हों, जैसा कि यहाँ पर हम जब एनालाइज कर रहे थे तो हमने 4 वेरिएबल्स हमको लगा था कि टाइम पीरियड पर असर डालेंगे। तो 4 वेरिएबल्स अगर हों तो हमारी इक्वेशन
फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से जो हम इक्वेशन बना रहे हैं वो इस तरीके से फंसेगी, जहाँ पर आपको सी और डी दो वेरिएबल ऐसे मिल रहे हैं जिनकी वैल्यू आप, चार वेरिएबल्स हैं अननोन और तीन इक्वेशंस हैं, तो एक या दो वेरिएबल्स का आंसर आपको इससे नहीं मिल पाएगा। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि अच्छा क्या लिमिटेशन है कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस के इस मेथड से हम दो क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन निकालना चाहें तो हमें एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी तीन फैक्टर्स पर होगी तभी आंसर मिलेगा, तीन से ज़्यादा होगी तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वेरिंग ऑल द टर्म्स और फिर टाइम पीरियड के साथ उसका रिलेशन अलग अलग स्टडी करके और तब एक फॉर्मूला बनाए। हमने देखा कि मास को हम ऐसे ही हटा ले गए, मास पर डिपेंड नहीं करता, जी को भी हमने ऐसे ही हटा लिया, ना हमें माउंटेन पे जाने की ज़रूरत है ना अर्थ के नीचे, कि भाई जी की पावर -12 है फॉर्मूले में। अब एम्पलीट्यूड और लेंथ बचे केवल, तो वो हम कर सकते हैं कि भाई अब तो हमें एम्पलीट्यूड और लेंथ में से यही पता करना है कि ये दोनों कैसे कैसे असर डाल रहे हैं। तो सोचो, अगर मैं एम्पलीट्यूड की पावर c, ठीक, इसको पता करने के लिए मैं एम्पलीट्यूड अलग अलग छोड़ूं और टाइम नोट करती जाऊं, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड जब सेम आएगा तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड असर नहीं डालता। और जैसे ही हमको पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड असर नहीं डालता, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एम्पलीट्यूड का असर टाइम पीरियड पर स्टडी किया, और जब स्टडी किया तो हमने देखा कि हम कितनी भी एम्पलीट्यूड दे दें टाइम पीरियड वही आ रहा है। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि d मस्ट बी 0, और जैसे ही d 0 हुआ आप क्या करोगे, c = ½ तो एक क्वांटिटी है b जिसकी वैल्यू -½ और दूसरी है c जिसकी वैल्यू ½ बाकी सब 0। तो टाइम पीरियड को अब हम वापस आए, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया था, तो हमने कहा कि ये बताता है कि टाइम पीरियड इज k, मास टू द पावर 0 हटा दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो अंडर रूट में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा, और लेंथ कहाँ गई, लेंथ, ये लेंथ d, क्योंकि जब तुमने देखा तो तुमने देखा कि एम्पलीट्यूड जो है वो असर नहीं डाल रहा है। यहाँ पर देखो, एम्पलीट्यूड असर नहीं डाल रहा और एम्पलीट्यूड का जो पावर है वो d नहीं c है, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड की पावर c है, तो c 0 आ जा रहा है इस इक्वेशन से, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि एम्पलीट्यूड का असर नहीं हो रहा है। तो d अपने आप क्या बन जाएगा, ½ तो ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे इस जगह पर। तो टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला हमको मिल रहा है यहाँ से, T = ध्यान से देखना इसको, T = K मास टू द पावर a, मास टू द पावर 0 यानी ये टर्म गया, g टू द पावर -½ देन एम्पलीट्यूड का असर हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई असर नहीं है, तो c 0, और फिर लेंथ टू द पावर d यानी लेंथ की पावर +½ तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना पड़ा एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बीच, और हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। यहाँ पर हम इसको और ठीक से लिख सकते हैं, k √L/g। और अब हम लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको तो कांस्टेंट माने, लेंथ को चेंज करके हम टाइम पीरियड की इसके साथ रिलेशन निकालेंगे और उसकी हेल्प से k की वैल्यू निकल आएगी जो कि 2π के बराबर होगी। तो क्या फील आई तुमको, समझ आई तुमको कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे हमारे काम को छोटा कर देती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के इसी एप्लीकेशन का
की प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको बस सिर्फ इतना लिखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स अस टू फाइंड रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल्स ओनली, एक डिपेंडेंट और बाकी इंडिपेंडेंट। But if we are having variables more than 4, then dimensional analysis will not help us. इसके अलावा भी 2-3 limitations हैं डायमेंशनल एनालिसिस की और उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।